Alkaloids. The term alkaloid is commonly used to designate basic heterocyclic nitrogenous compounds of plant origin that are physiologically active. So alkaloids की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे compounds हैं जो कि alkali like हैं, कुछ basic characteristics हैं, plus they are heterocyclic. It means कि जब हम उनके structure को देखेंगे तो they will have some ringed sort of structure, plus इनमें nitrogen present होगा. Mostly they are hydrocarbons containing nitrogen. So carbon और hydrogen इसमें मौजूद होंगे और साथ ही साथ उसमें nitrogen भी मौजूद होगा. Plant origin के हैं, it means कि ये plants में naturally present होते हैं और physiologically active, it means कि if they are consumed तो ये कुछ physiologically ऐसे effects produce करते हैं, they activate or stimulate some sort of effects in humans when they consume it. Any alkaloid, इसमें फिर आगे हम discuss करेंगे different sort of examples, कौन कौन से alkaloids हैं जो plants से हमें मिलते हैं और कौन सी ऐसी families हैं जो plants की जिनमें ये naturally present होते हैं. So discuss करते हैं हम इनकी distribution को और occurrence को. They are rare in lower plants. Dicots are more rich in alkaloids than monocots. So dicots में ये ज़्यादा पाए जाते हैं as compared to monocots. अब कौन सी ऐसी families हैं plants की जिसमें ये बहुत ज़्यादा amount में present हैं? So those families are Apocynaceae, Rubiaceae, Solanaceae and Pepperveraceae. कुछ ऐसी families भी हैं plants की जिसमें ये नहीं मौजूद होते and these families are Rosaceae and Labiatae. इन दोनों families में alkaloids absent होते हैं, whereas the families which are Solanaceae, Rubiaceae, Apocynaceae and Pepperveraceae इसमें ये बहुत ज़्यादा rich होते हैं. इनका प्लांट्स में क्या फंक्शन होता है और ये प्लांट्स में क्यों मौजूद है? ऑफ कोर्स अगर कोई भी चीज़ नेचुरली अकरिंग है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इट मींस कि इट मस्ट हैज अ सॉर्ट ऑफ फंक्शन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. सो प्लांट्स में जो अल्कलॉइड्स हैं उनका जो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड हर्बीवोर्स. क्योंकि ये जो एल्कलॉइड्स हैं प्लांट्स में इनकी प्रेजेंस बिटरनेस और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि उसको उस पर फीड करना चाहता है वो उसकी बिटर टेस्ट की वजह से और टॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से उसको कंज्यूम नहीं करता. मोरओवर they are in certain cases the final products of detoxification waste products. So ये plants के अंदर जो produce होते हैं as a result of certain detoxification processes ये produce होते हैं as a waste product और या end product के तौर पर ये plants में produce होते हैं. In case of nitrogen deficiency ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के तौर पर भी उसमें प्लांट में ये काम करते हैं बिकॉज वी हैव स्टडीड कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसमें इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है. सो एज वी नो प्लांट्स दे नीड मेजर न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. सो इन केस इफ प्लांट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन सो दे कैन यूज दीज एल्कलॉइड्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. They sometimes act as growth regulators in certain metabolic systems. So growth regulation का काम भी करते हैं inside the plant body. Furthermore, they may be utilized as a source of energy in case of deficiency in carbon dioxide assimilation. अगर carbon dioxide नहीं मौजूद, उसको source of energy की ज़रूरत है, तो उस सूरत में as a source of energy भी plant इन alkaloids को use कर लेते. Types of alkaloids. There are three types of alkaloids: true alkaloids, protoalkaloids, and pseudoalkaloids. What are true alkaloids? ऐसे alkaloids जिनके
heterocyclic ring में नाइट्रोजन मौजूद होता है, those alkaloids are called true alkaloids. प्रोटो अल्कलॉइड्स, हम उन अल्कलॉइड्स को बोलते हैं जिनके जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन एटम मौजूद नहीं होता. सो प्रोटो अल्कलॉइड्स आर दोज in which the nitrogen atom derived from amino acids is not part of their heterocyclic ring. Now the third type of alkaloids, which is pseudoalkaloid, these are alkaloid-like compounds that do not originate from amino acids. This group includes terpene-like, steroid-like, as well as purine-like alkaloids. So these are three types of alkaloids. अब humans, if they consume these alkaloids which are taken from the plants, तो humans में ये किस किस्म के physiological effects produce करते हैं? Let's see. High biological activity, produce various physiological and psychological responses largely by interfering with neurotransmitter. So mostly ये हमारा जो nervous system है उसके साथ ये interfere करते हैं. कुछ physiological, कुछ psychological responses produce हो जाते हैं इनकी consumption की वजह से. और जो nervous system के साथ जब इनकी इंटरफेरेंस होती है तो उसको स्टिमुलेट कर लेता है कुछ ख़ास किस्म के सेंटर्स को, और वो आगे चल के जब हम इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे अल्कलॉइड्स की तो उसमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जो टाइप ऑफ अल्कलॉइड है वो कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं. एज अ होल अगर हम देखें तो लार्ज डोजेस में अगर अल्कलॉइड्स को कंज्यूम किया जाए तो दे आर हाईली टॉक्सिक एंड दे कैन बी फेटल एज वेल. स्मॉल डोजेस में दे कैन हैव थेराप्यूटिक वैल्यू एज वेल. मसल रिलैक्सेंट के तौर पर दे कैन बी यूज्ड, बट इन स्मॉल डोजेस पेन किलर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, माइंड अलर्टिंग ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी. तो इसके एग्जांपल्स में कुछ जो अल्कलॉइड्स हैं आ जाते हैं उसमें निकोटीन, मॉर्फिन, कैफीन. in this part of lecture we are just going to discuss one of these examples, which is nicotine, and morphine and caffeine वो बाद में उसके lectures मैं share कर लूँगी आप लोगों के साथ. निकोटीन का जो केमिकल फॉर्मूला है इट्स विजिबल हियर. इट हैज़ 10 कार्बन्स, 14 हाइड्रोजन्स एंड 2 नाइट्रोजन. और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जैसे हमने डेफिनेशन देखी थी अल्कलॉइड्स की कि दे आर heterocyclic compounds and they are containing nitrogen. So यहाँ पर it's quite visible that it's having a double ringed structure and दोनों rings में एक एक nitrogen present है and all the other bonds are between hydrogen and carbon. Now what is nicotine? Nicotine is a potent parasympathomimetic alkaloid found in the nightshade family of plants. Nightshade family का जो दूसरा नाम है that is Solanaceae. So हम इन plants को जिस family से belong करते हैं, Solanaceae family से, उसको usually हम लोग nightshades भी कहते हैं. ये क्या करती है? इट्स अ पोटेंट पैरासिम्पैथोमाइमेटिक अल्कलॉइड. पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हम किसी भी ऐसे अल्कलॉइड को या किसी भी कंपाउंड को हम उस वक्त बोलते हैं जब वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट कर लेता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे रिलेट करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग एक्टिविटीज़. सो जो हमारी बॉडी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स रिलेट करती हैं या एसोसिएटेड हैं विद द रेस्टिंग कंडीशन प्लस द डाइजेस्टिंग कंडीशंस, तो वो उस किस्म की एक्टिविटीज़ लाइक जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है तो उसमें कुछ वो काम डाउन हो जाना या कुछ रिलैक्सिंग सिचुएशन होती है,
मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके अलावा डाइजेशन रेट हमारा फास्ट हो जाता है अगर हम डाइजेस्टिंग एक्टिविटीज़ को देखें। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये स्टिमुलेट कर लेता है निकोटीन जब इसको कंज्यूम करते हैं हम। उसके अलावा ये क्या कहाँ से हम हासिल करते हैं? इट इज़ मेड इन द रूट्स ऑफ एंड एक्यूमुलेट्स इन द लीव्स ऑफ द नाइटशेड फैमिली ऑफ प्लांट्स। ये नाइटशेड्स जो हैं प्लांट्स, उनके रूट्स में ये बनता है और वहाँ से फिर ये ट्रैवल करके इनसाइड द लीव्स ऑफ दोज प्लांट्स ये उनके लीव्स में एक्यूमुलेटेड होता है, और इसीलिए हम मोस्टली जो नाइट शेड्स हैं उनके लीव्स को लिया जाता है, उनको ड्राई करके उनको क्रश किया जाता है, एंड दे आर यूज्ड इन सिगरेट्स एज वेल एंड टोबैको स्मोकिंग की जब बात आती है तो उसमें लीव्स ही हैं पर्टिकुलरली टोबैको के जो कि यूज़ किए जाते हैं। Nicotiana tobacum, the type of nicotine found in tobacco plants, comes from the nightshade family. So as we have discussed earlier कि tobacco जो है it's also from the nightshade family, yeah, Solanaceae family, they're both the same families. So, उससे जो type of nicotine हम हासिल करते हैं that is Nicotiana tabacum, और ये जो nicotine है इसकी जब कंजम्पशन कोई करता है, इसको लेता है जब कोई, तो ये हैविली एडिक्टिव इसका जो है रिस्पॉन्स है या इसका इफ़ेक्ट है। इसकी टोबैको की डिपेंडेंसी जो है ये बॉडी में डेवलप हो जाती है। सो दोज हु आर कंज्यूमिंग निकोटीन दे बिकम एडिक्टेड टू इट, उनमें डिपेंडेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी टोबैको की, एंड और भी इसके बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन ये एक जो इसका जो इफ़ेक्ट है कि ये एडिक्शन कॉज कर लेता है, उसकी वजह से इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल हु आर कंज्यूमिंग निकोटीन टू क्विट स्मोकिंग। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं कि दोज हु स्मोक निकोटीन और हु कंज्यूम निकोटीन, उनकी बॉडी में किस किस्म के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनिशियली इट कॉजेज नॉसिया एंड वॉमिटिंग बाय स्टिमुलेटिंग वॉमिटिंग सेंटर इन ब्रेन स्टेम एंड सेंसरी एंडिंग्स इन स्टमक। सो इनिशियली जब कोई लेता है निकोटीन को, तो जो ब्रेन का स्टेम है इट इज़ एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड देयर इज अनदर वन एज वेल। ये जो 3 हैं ये बना लेते हैं ब्रेन स्टेम, और सेंसरी एंडिंग्स जो स्टमक में मौजूद होती हैं ये उनको स्टिमुलेट कर लेता है वॉमिटिंग सेंटर को इन द ब्रेन स्टेम। उसकी वजह से इनिशियली दोज हु आर कंज्यूमिंग इट दे विल फील नॉजियाटिक, एंड सेकेंडली they will experience stimulation of hypothalamus to produce antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone इसकी abbreviation ADH है, और ये क्या करता है? It causes fluid retention in the body. It makes the nephrons or the kidneys to retain more water. So the water that is produced in the form of urine, वो कम water produce होगा, कम water remove होगा from the body, and more will be retained in the body. Reduces activity coming in from muscles, producing relaxation. As we have discussed कि निकोटीन जो है ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करता है। सो उसकी वजह से क्या है, रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग, हमने कहा कि ये उसके साथ रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो मसल रिलैक्सेशन ये कॉज करेगा, जो कि रेस्टिंग कंडीशन के साथ रिलेट करता है, एसोसिएटेड एक कैरेक्टरिस्टिक है। Furthermore, it increases heart rate, blood pressure and contractility. So blood pressure वगैरह, heart rate इससे तेज हो जाता है। Carbon monoxide in smoke combines with oxygen better than hemoglobin. अब जो hemoglobin, which is a kind of protein present inside our blood, which is responsible for oxygen carrying capacity,
जो प्रोवाइड करता है रेड ब्लड सेल्स को, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से के लिए ज़्यादा वो है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा है। सो स्मोक में मौजूद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सो द पीपल हु स्मोक, उस कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वांटिटी उनकी बॉडी के अंदर जाती है, इट इज़ लाइकली टू कॉज सेल सफोकेशन, क्योंकि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ऑफ हीमोग्लोबिन वो डिक्रीज हो जाती है उसकी वजह से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है, दैट्स नेचुरल। सो जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन के बजाय आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स की जो हीमोग्लोबिन है, इट विल attract more carbon monoxide as compared to oxygen. Nicotine is quickly and thoroughly distributed in the body to brain, placenta, all body fluids, including breast milk. So even if pregnant women are taking nicotine, if they smoke, तो ये placenta तक भी जाता है. It can cause damage to fetus as well. उसके अलावा nursing mothers, if they are smoking, तो breast milk can also have that nicotine. Liver metabolizes 80 to 90% before excretion by kidneys. इससे पहले कि किडनीज उसको एक्सक्रीट कर लें, 80 to 90% जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, और इसकी जो हाफ लाइफ है इसकी एलिमिनेशन की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 hours. और जिसका मेजर मेटाबोलाइट है वो क्वाटिनिन है, और क्वाटिनिन को ही बेसिस लिया जाता है फॉर टेस्ट्स. लाइक अगर कोई जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है फॉर स्मोकिंग, तो जो चीज़ डिटेक्ट की जाती है वो क्वाटिनिन होता है. निकोटीन क्योंकि डायरेक्टली निकोटीन की फॉर्म में वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होता, बल्कि वो मेटाबोलाइज होता है जब, तो वो क्वाटिनिन उससे बन जाता है, और क्वाटिनिन की फॉर्म में ये रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है फ्रॉम ह्यूमन बॉडी. अब हम लोगों ने इसके बारे में सीखा कि निकोटीन जो है ये कॉज कर लेती है डिपेंडेंसी. सो इसको क्विट करना इट्स क्वाइट हार्ड. सो स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी is the process of discontinuing tobacco smoking. So if someone wants to quit smoking, he or she has to take smoking cessation therapy, जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज यूज कर ली जाती हैं. स्मोकिंग जो है इट्स the most common cause of death worldwide. So somehow people when they realize that they are having adverse effects in their body due to nicotine consumption, so at some point in their life they want to quit smoking. At that time they will have to take some sort of smoking cessation therapy. इसमें बहुत सी स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती हैं, जिसमें एक जो है वो है एब्रप्टली क्विटिंग, फ़ौरन से छोड़ देना विदाउट एनी असिस्टेंस, उसको कहा जाता है कोल्ड टर्की. उसके अलावा एक और जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ कटिंग डाउन देन क्विटिंग. आहिस्ता आहिस्ता वो जो उनकी जो अमाउंट थी ऑफ टेकिंग निकोटीन, उस अमाउंट को कम कर लिया जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिड्यूस करते करते एक टाइम पर उसको कम्प्लीटली क्विट कर दिया जाता है. उसके अलावा बिहेवियरल काउंसलिंग इसमें इंक्लूडेड है कि उसकी बिहेवियर की जो चेंजेस हैं उसके लिए काउंसलिंग उसकी की जाती है. एंड देन देयर आर सम मेडिकेशंस एज वेल, जिन मेडिकेशंस की वजह से जो कि एक काइंड ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, और वो एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर देता है निकोटीन का, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी वजह से क्विट कर सकता है द पर्सन हु इज एडिक्टेड टू निकोटीन. इन मेडिकेशंस में आ जाता है ब्यूप्रोपियोन, साइटिसिन
और उसके अलावा सम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें भी कुछ ऐसा अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर दिया जाता है बॉडी को इंस्टेड ऑफ निकोटीन. Most smokers who try to quit do so without assistance. However, only 3 to 6% of quit attempts without assistance are successful long term. So, ये जो इसकी परसेंटेज है लॉन्ग टर्म सक्सेस की, वो सिर्फ 3 to 6% है जो कि हुगो कोल्टा की. सो असिस्टेंस के साथ क्विट करना इज more successful when it is seen in the long run. Behavioral counseling and medications each increase the rate of successfully quitting smoking. So behavioral counseling और medications अगर साथ में use की जाए तो वो जो long term में जो success है of quitting smoking, उसको उसका जो success rate है उसकी percentage increase की जा सकती है. And the combination of behavioral counseling with the medication such as bupropion is more effective than either intervention alone. So सबसे जो successful smoking cessation therapy है, it is said to be behavioral counseling plus a medication such as bupropion. और इसका इस therapy को सबसे ज़्यादा successful देखा गया है for quitting smoking. So that was all about alkaloids. आज हमने डिस्कस कर लिए. उसकी फिर कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं जिसमें आज सिर्फ एक एग्जांपल हमने डिस्कस की which is nicotine, and उसी से रिलेटेड फिर smoking cessation therapy था which we have discussed. So that was all for today. Thanks.